ٹاپک سے آج ہم سب ایصال ثواب کی اس محفل پاک میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بسط کا حضور صاحب الاولاد ہمارا آنا مل بیٹھنا اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالخصوص برادر مکرم بھائی محمد زاہد صاحب کے والد گرامی کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مرحوم کے درجات کو بلندی اور رفعت نصیب فرمائے۔ جن کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ جن کے والدین دونوں یا دونوں میں سے ایک دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا، روشن اور منور فرمائے۔ برادران عزیز وقار، دنیا کے اندر پائے جانے والے جتنے بھی رشتے ہیں، ہر رشتے کا ایک اپنا حسن، ایک اپنی مٹھاس، اور ہر رشتے کے جداگانہ احکام ہیں۔ تمام رشتوں سے زیادہ اہمیت کے حامل رشتے وہ دو ہیں جن کو والدین کہا جاتا ہے۔ حقوق کے اعتبار سے ماں کو اہمیت حاصل ہے، لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے اللہ تعالی نے جو عزت والد کو عطا کی ہے وہ مقام ماں کا بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رہے، ماں کے حقوق کی آڑ کے اندر باپ کی عظمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اور باپ کی عظمت کے پردے کے اندر ماں کے احترام کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے سر کے اوپر لگی ہوئی دو آنکھیں، اگر ہم ایک کو بند کریں تو ایک سے دیکھا جا سکتا ہے، اس کو بند کر کے دوسری سے دیکھیں تو دیکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال ایک آنکھ سے گزارا تو ہو جائے گا، لیکن جس بندے کے پاس ایک ہو دوسری نہ ہو تو وہ کامل انسان نہیں کہلاتا۔ معاشرے کے اندر اس کو طرح طرح کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالی نے دنیا کے اندر باشعور انداز میں اور باوقار انداز میں زندگی گزارنے کے لیے جس طرح سر کے اوپر دو آنکھیں عطا کی ہیں اور سننے کے لیے دو کان عطا کیے ہیں اور سونگھنے کے لیے ایک ناک کے اندر دو نتنے عطا کیے ہیں، پکڑنے کے لیے دو ہاتھ، چلنے کے لیے دو پاؤں عطا کیے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی زندگی کو حقیقی حسن عطا کرنے کے لیے رشتوں کے اندر دو اہم رشتے یعنی والدین عطا کیے ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم والد کی عظمت کو قرآن و حدیث سے ذرا سمجھنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جناب ماں کی شان بتاتے ہو، باپ کی شان کی باری آ جائے تو مولوی حضرات بھی ڈنڈی مار جاتے ہو۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی ماں کی عظمت اور ماں کی شان بتائی جائے تو مطلب یہ نہیں کہ باپ کا مقام کوئی نہیں۔ تو جس طرح میں نے مثال دی ہے، آنکھ دونوں اہمیت کے حامل ہیں، کسی ایک کے بغیر بندہ کامل نہیں ہو سکتا۔ ہر آنکھ کی اپنی اہمیت ہے، تو والدین آنکھوں کی مانند ہیں، ماں کی اپنی شان ہے اور والد کی اپنی شان ہے۔ سنیے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید میں باپ کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا کہ مجھے اس عزت والے باپ کی قسم ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ماں کی شان بہت بتائی گئی ہے، لیکن کسی مقام پر ماں کی عزت کی قسم نہیں اٹھائی۔ جب قسم اٹھانے کی بات آئی ہے تو میرے رب نے باپ کی قسم اٹھائی، فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، فرمایا مجھے اس عزت والے باپ کی قسم ہے۔ اور یہ میں آپ کی خاموشی توڑنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں کہ میرے ڈائریکٹ رب نے باپ کی قسم نہیں اٹھائی، بلکہ تمہید باندھ کے فرمایا لا اقسم بہذا البلد،
फरमाया महबूब मुझे इस शहर मक्का की कसम है, और फिर फरमाया वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, और इस शहर मक्का की कसम किस लिए है कि महबूब इस मक्का की गलियों के अंदर तेरा आना जाना है, तेरा चलना फिरना है। यूं कहिए कि महबूब इस शहर मक्का की इज्जत की कसम इसलिए है कि इस शहर मक्का की राहों के पत्थर तेरे कदमों को बोसा दिया करते हैं। और पहले इतना हसीन जुमला इरशाद फरमाने के बाद कहा व वालिदैन व मा वलद, फरमाया हमें उस इज्जत वाले बाप की कसम है और उस शराफत वाले बेटे की कसम है कि जिनकी सदाकत और जिनके इस्तिकलाल की बिना पे अल्लाह ताला ने इस मक्का मुआज़मा को ये इज्जत और शर्फ अता फरमाया है। और वो इज्जत वाला बाप कौन? जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जात है। और एहतराम वाले बेटा कौन है, मोहब्बत वाला बेटा कौन है? वो जनाब सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम है। याद रखिए कि हम जब भी कोई हुक्म देखते हैं वो शरीयत का, तो हमारा नुक्ता नजर उसके अंदर ये होता है कि अगर मैं ये काम करूं तो मुझे फायदा क्या मिलेगा, इसके अंदर मेरा दुनियावी फायदा क्या है, मुझे नफा क्या मिलेगा। तो नौजवानों का सवाल यह है कि अगर हम वालिदैन की खिदमत करते हैं, बिलखुसूस बाप की खिदमत करते हैं, तो इससे हमें मिलेगा क्या, दुनिया के अंदर हमें क्या हासिल होगा। तो याद रखिएगा आज दुनिया के अंदर दो काम सबसे मुश्किल है। पहला काम है माल कमाना, दुनिया कमाना। इसलिए कि हर नौजवान आज अगर प्रदेश के अंदर खोरी खोत रहा है तो वजह क्या है? वो सिर्फ माल के लिए, रिस्क के पीछे है। और अगर कोई नौजवान आज अरब के वो तपते हुए सहराओं को अपने हाथों से छान रहा है तो किस लिए? सिर्फ रिस्क के लिए, रोटी के लिए। तो याद रखिएगा ये प्रदेश के सारे दुख रोटी के लिए हैं, लेकिन याद रखिएगा वालिदैन की खिदमत से सबसे पहला फायदा ये होता है कि रब उस बंदे के रिज्क में बरकत अता फरमा देता है। यानी उस बंदे के लिए रिस्क कमाना आसान हो जाता है। और दूसरा फायदा रिस्क बचाना आसान हो जाता है। इसलिए कि आज हर नौजवान का मसला यही है कि जनाब कमाते बहुत है, बचता नहीं है। अगर प्रदेश के अंदर है तो प्रदेश के खर्चे बहुत है, अगर देश के अंदर है तो देश के मसाइल बड़े हैं, और यहां पर भी बहुत खर्चे होते हैं, वहां पर भी बहुत खर्चे होते हैं। पहली बात तो कमाना मुश्किल है, अगर कमा लिया जाए तो बचाना मुश्किल है। तो याद रखिए वालिदैन की खिदमत, बिलखुसूस बाप का अदब और बाप का एहतराम, ये ऐसा अजमत वाला वजीफा है कि जिसकी बिना पे अल्लाह ताला सबसे पहला फायदा औलाद को ये देता है कि उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देता है। और दूसरा फायदा ये होता है कि उसको रिस्क जैसे कमाना आसान हो जाता है, ऐसे ही अल्लाह ताला उसके रिस्क को बचाना भी आसान फरमा देता है। अब मैं इस बात को आसान कर देता हूं। अगर हम सारी तारीख पढ़ के देखें, बल्कि तारीख इंसानियत ही पढ़ के देख लें, दुनिया के अंदर बड़े बड़े ताजर आए हैं और बड़ी बड़ी तिजारतें की हैं, लोगों ने बड़े बड़े नफे कमाए, लेकिन आज तक बनी इसराइल के उस नौजवान से ज्यादा नफा किसी बंदे ने नहीं उठाया कि जिसकी गाय का गोश्त सोने के भाव बिका था। पहला पारा सूरत बकरा के अंदर यह किस्सा बड़ी तफसील के साथ चल रहा है। बल्कि इस बकरा को बकरा कहा इसलिए गया कि बकरा अरबी के अंदर गाय क्यों कहते हैं, इसके अंदर बनी इसराइल का वो वाक्या चल रहा है। और वो गाय कितनी महंगी बिकी थी, वो गाय का जरा रेट सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि गाय का गोश्त इतना महंगा बिका था कि खरीदारों से कहा गया था तुम गाय ले जाओ, इसका गोश्त निकाल लो और इसके पोस्ट के अंदर हमें सोना भर के दे जाओ। मुझे बताओ जितनी भी महंगाई हो, जिस दौर में भी महंगाई हुई हो, कभी गोश्त सोने के भाव तो नहीं बिका होगा ना। जिस बंदे ने जितना बड़ा नफा भी कमाया हो, जितना बड़ा फायदा भी कमाया हो और जितनी बड़ी तिजारत भी कमाई हो, तो कभी किसी बंदे को इतना फायदा तो नहीं हुआ होगा कि उसका गोश्त सोने के भाव बिक जाए। लेकिन बनी इसराइल का ये नौजवान अपनी गाय का गोश्त सोने के भाव में बेच रहा है। और अभी तक चूंकि आप खामोश बैठे हैं, चलो मैं थोड़ी सी इस वाकया की तफसील अर्ज कर देता हूं ताकि ये बात ज़हन नशीन और आसान हो जाए। चचा कि औलाद नहीं थी, उसने अपना भतीजा ले पालक रख लिया, जिसको हमारी पढ़ी लिखी जुबान में
एडॉप्टेड चाइल्ड कहते हैं, यानी बच्चे को लेके पाल लिया जाता है। शरीयत ने इसके भी अहकाम बताए हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो हम जैसे बच्चा लेके पाल लेते हैं, तो चचा ने अपना भतीजा लेके पाल लिया। जब वो भतीजा जवान हुआ तो उम्मीदें थी कि ये मेरा सहारा बनेगा, ये मेरा सहारा बनेगा। लेकिन हुआ क्या कि भतीजे को इंतजार था कि चचा कम मरता है ताकि इसका माल मेरे हाथों में आ जाए। अब भतीजा इंतजार में है कि चचा मरे और माल मेरे हाथ के अंदर आ जाए, लेकिन चचा तो जिंदगी गुजार रहा था, बसर कर रहा था। और ये फर्क होता है औलाद और माँ बाप में। माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की खैर मांगते हैं, यानी जब वो बीमार भी हो ना बच्चा, तो माँ बाप का चेहरा उतरा होता है, वो हमेशा दुआएं मांगते हैं, दुआएं करवाते हैं, अल्लाह इसको सेहत दे। लेकिन बेटा जब माँ बाप पर बीमार हो जाए ना, तो 100 बार ऐसा हुआ कि औलाद आ कहती दुआ कर दे, जो इना वास्ते खैर है, जो इना वास्ते ठीक है, अल्लाह कर दे। अब वो ये तो नहीं कह सकते कि अल्लाह इनको मौत दे दे, अब वो हमें इख्तियार देते, आप दुआ कर दे जो इनके लिए बेहतर है, अल्लाह वो कर दे। लेकिन इसका मतलब क्या है, औलाद अपने माँ बाप की मौत मांगती है, लेकिन माँ बाप हमेशा अपनी औलाद की जिंदगी मांगते हैं। अब वो भतीजा इस इंतजार में था कि चचा कम मरता है ताकि इसका माल मेरे हाथ में आ जाए। तो इत्तेफाक से वो अल्लाह पाक ने जिंदगी लिखी थी, चचा अपनी जिंदगी गुजारता था। भतीजे ने एक दिन प्रोग्राम बनाया, क्यों ना हो इसके मौत का इंतजार किया जाए, चचा को हम कत्ल कर देते। उसने चुपके से चचा को कत्ल किया और जाके सुबह जनाब मूसा करीमुल्लाह के दर दौलत पे ये दावा दायर करवा दिया कि किसी ने मेरे चचा को कत्ल कर दिया है और मुझे उसका खून बहा लेके दिया जाए, मुझे इसकी दियत दिलवाई जाए, पैसे दिलवाए जाए कि कत्ल किसने किया है, यानी कत्ल भी खुद किया और फिर ऊपर से पैसे कमाने के लिए अल्लाह के नबी के दरबार में जाके दावा भी कर दिया। उसको ये नहीं पता था जिस बारगाह में मैं दावा दे रहा हूं ये पाकिस्तान की अदालत नहीं, ये अल्लाह के नबी का दरबार है। और उसको ये नहीं पता था कि इस दरबार की सुनवाई कहां तक है, ये तो वो अली बारगाह है कि जिनको अल्लाह ताला से हम कलामी का शरफ भी हासिल है। जनाब सैयदना मूसा करीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने दरबार खुदा में अर्ज की, मौला ये मामला है, अब करम फरमा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि प्यारे करीम हुक्म दे गाय ज़बह करें और उस गाय के सामने के गोश्त, ये बाजू वाला जो गोश्त है, इसका टुकड़ा इस मुर्दे को लगाएं, ये बोल के बताएगा मुझे कत्ल किसने किया। अब सुनिए जरा इस बात को बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अब कौम के अंदर चूंकि कातिल था, केस को उलझा दिया। वो गाय कैसी होनी चाहिए, उस गाय की सिफ्त कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसकी उम्र कितनी है, तरह तरह के सवाल करने शुरू कर दिया। और याद रखिएगा कुरान के इस वाक्य से ये बात समझ आती है, जो बंदा केस उलझाता हो ना, मुजरम वही होता है। जो बंदा केस को उलझाए मुजरम वही होता है। और आज ये नाराज ना होना अगर कोई बंदा इस फील्ड से मुंसलिक बैठा है, आज मेरे मुल्क के अंदर केसों को उलझाने वाली हमारी अदलिया है। इसलिए कि हाथ परस से या किसी एक्टर के हाथ से 2 बोतलें शराब की पकड़ी जाए और वो 10 साल केस चले और 10 साल के बाद वो बरी हो जाए, तो मुझे बताओ अब इसके अंदर कसूर किसका है? भाई हाथ से शराब पकड़ी गई है, 10 साल तक उसका केस चलता रहा। किस बात का केस चलता रहा 10 साल? या तो बात होती ना उमर बिन खत्ताब का दौर होता, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आ रहे थे, एक नौजवान सामने से आ रहा, बगल के अंदर शराब की बोतल है। जब देखा उमर बिन खत्ताब को तो दिल ही दिल के अंदर अपने खुदा से बातें करने लगा, मौला ये उमर आ रहे हैं, अगर उनको पता चल गया मेरे पास शराब की बोतल है तो मौला मुझे वो यहीं पर कोड़े लगाएंगे और अभी सजा मिलेगी। अल्लाह मैं तुझसे सुलह करता हूं, आज मुझे बख्श दे, आइंदा के बाद मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। उमर बिन खत्ताब सामने आए ना तो पूछा ये तेरी बगल में क्या है? नौजवान बेखौफ खतर कहता हुआ ये सिरका है। आपने फरमाया चेक करवाइए कि कौन सा सिरका है। उसने शराब की बोतल सामने कर दी। उमर बिन खत्ताब ने खोल के जब चेक किया तो वो शराब नहीं, वो सिरका बन चुका था। यानी जब बंदा रब से रुजू कर ले, रब ताला की तरफ वो तौबा करने की नियत कर ले, फिर अल्लाह ताला आसानी के रास्ते हमवार करता है। और हमारे मुल्क से अगर हॉस्पिटल से किसी सियासतदान के तकिए के नीचे से शराब की बोतल बरामद हो और उठाने वाला वक्त का चीफ जस्टिस हो, लेकिन जब लेबोरेटरी में जाए तो वो शहद बन जाए। यानी हॉस्पिटल से सियासतदान मरीज साहब के बेडरूम से बोतल शराब की मिल रही है और उठाने वाला भी जज है, और वो लेबोरेटरी के अंदर जाए तो वो शहद बन जाए। अब खुदा जाने उस सियासतदान की तौबा अल्लाह के यहाँ कितनी मकबूल होगी
देखिए स्याबी रसूल की शराब की बोतल तो सिरका बन रही है और इसकी शराब की बोतल सिरका नहीं बनी, वो शहद बन रही है। अब क्या हुआ, उस नौजवान का केस उलझ गया। अल्लाह ताला के दरबार में अर्ज की, मौला ये कौन पूछती है, वो उस गाय की निशानियां बता दे। अल्लाह ताला ने निशानियां बता दी। जब निशानियां वो सारी की सारी ढूंढी गई, सारी की सारी निशानियां पाली गई, एक गाय जंगल के अंदर खड़ी है, निशानियां सारी पूरी है, लेकिन मालिक का पता नहीं चल रहा ये मालिक कौन है। कहा अब इसका मालिक ढूंढा जाए, और ये बात कहे बगैर मैं आगे नहीं गुजर सकता। बनी इसराइल के लोग थे, भतीजा था, चचा का कातिल था, बहुत बुरा बदला था, लेकिन उसने गाय देख के गाय पकड़ी नहीं है, बल्कि गाय का मालिक ढूंढा है। और आज हम देखते हैं कोई देखता तो नहीं है। किसी की बकरी उठानी हो, किसी का बकरा उठाना हो, किसी की भैंस खोलनी हो, किसी की मुर्गी उठानी हो, किसी का अंडा उठाना हो, भाई हम अंडा उठाते हुए इधर उधर देख के कहते हैं कोई नहीं देख रहा, अंडा उठा लेते हैं। यारो मुझे बताना, अगर अंडा उठाते वक्त मौत आ गई, हमने कहा कोई नहीं देख रहा, तो रब के हाथ जवाब क्या दोगे कि मौला तू भी नहीं देख रहा था? और देखने वाले की नजर से तुझे डर लगता है, कैमरे की नजर से डरता है, बंदों की निगाह से डरता है, लेकिन निगाह खुदा का कोई हया नहीं है। और बनी इस्राइल का इतना बड़ा मुजरिम है, लेकिन गाय की निशानियां पाई गई। ये नहीं कहा कि ये बस मुझे गाय मिल गई, इसका कोई मालिक नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि उसका मालिक ढूंढा गया। पता चला कि उसका मालिक एक यतीम बच्चा है। उस बच्चे को लाया गया, पूछा गया कि क्या तू गाय बेचेगा? उसने कहा जी बेच लेंगे। कहा पैसे कितने लेगा? कहा आप इधर ठहरो, मैं घर से अपनी अम्मी से पूछ के आता हूं। और ये बात मैं नौजवानों के लिए कहना चाहता हूं कि आजकल अगर पहली बात तो ये है कि ये जितने होते हैं ना, ये सौदा करने वाले लोग, खरीदार लोग जो होते हैं, उन्हों की कोशिश होती भी सियाना बंदा मत्थे ना लगे तो किसी मुंडे कुंडे नाल सौदा करके ना कुछ कमा के तो निकल गए, क्योंकि मुंडा कुंडे सौदा करना नहीं आता। तो जे कुछ सियाना व्यापारी हो ना, सियाना व्यापारी वो गल करदा, काका मैंने सौदा बाद करी, पहले अम्मी ने पूछा बेचनी भी है बकरी कि नहीं। सियाना व्यापारी समझ दो, जैसे हजे तक मैं परेशान अभी मैं गल करनी केड़ी तुहाडे नाल मैं तुसी ना माशाअल्लाह ना सुभान अल्लाह ना ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कुछ ते कहो यार। अब सुनिए जरा इस बात को और तवज्जो से सुनिएगा। जेड़ा सियाना व्यापारी होवे ना, सियाना व्यापारी वो कहंदा जा काका पहले घर पहुंच के आ, ते जे तां होवे कोई तरबियत याफ्ता मुंडा कहंदा चाचा जी तुसी बैठो पानी पियो तो मैं अम्मी नूं पुछ के आना या अब्बे नूं पुछ के आना। तो जेड़ा होवे ना बस ओ 8वीं चों भज्जिया होया, नाराज ना होना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने जुमला कहा है। यानी जिसको अल्लाह ताला ने इल्म, अमल और अदब की तौफीक नहीं बख्शी, वो पता क्या कहे, छड़ दिया पेनू मैं आले नाला तू गल कर कि मेरे बाप ने मुझे आले नाल कर दिया है, अब उनसे पूछने की हाजत नहीं है। याद रखना, जब माँ बाप अगर इख्तियार दे तो वो माँ बाप का बड़ापन है, औलाद को अगर बाइख्तियार बना दे तो ये बाप की सखावत है। लेकिन इसका मतलब यह है कि बाप की राय को मुकद्दम रख, बाप के मशवरे के शरीक रख। उसका फायदा क्या होगा? जिस कारोबार के अंदर बाप का मशवरा आ जाए उस कारोबार में घाटा नहीं आता, अल्लाह उस कारोबार में फायदा अता फरमा देता है। उस नौजवान ने कहा आप कह रही है मैं माँ से पूछ के आता हूँ। गया माँ के पास, माँ जी वो गाय के खरीदार हैं, बेचने का, बेटा बेच दो, पैसे कितने ले? काका हमने पैसे क्या करने, उनको बोलो गाय ले जाओ, गोश्त निकाल लो, सोना भर के दे जाओ। तो आए और आकर कहा भी गाय ले जाओ, पैसे कितने? कहा पैसे नहीं चाहिए हमें, सिर्फ गोश्त निकाल लेना, सोना भर के दे जाना। एडी महंगी गां एक खास गल है। उन्होंने कहा मियां जे खास गल आउंदी ते तुसीं जंगल दी खाक ना छाड़ दे, जे खास गल ना होंगी तुहाडे इलाके गावां थोड़ी सी, इत्थे की लेना सी, खास है तो बात है। कहा क्या खासियत है? उसने कहा खासियत ये है कि इस गाय की तारीफें मेरा खुदा कर रहा है। अगर बेचने वाला हमेशा मालिक अपने सौदे की सिफात बताता है। मैंने मोबाइल बेचना है बिलफर्ज, वैसे मैंने बेचना नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं मोबाइल बेचूंगा तो मैं उसकी 100 तारीफें करूंगा। और गाय यतीम की बिक रही है, निशानियां कौन बता रहा? गाय यतीम की बिक रही है और तारीफें खुदा कर रहा है। और कहा इससे बढ़कर और क्या कहूं कि गाय मेरी है, लेकिन अब इस गाय का जिक्र कहा कि वो मेरा रब कर रहा है। और कहा इस गाय का पूछो भाई ये एडे कर्म वाली गां वा भी बंदा मरिया पिया होवे ना
تے ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਗੋਸ਼ت ہے ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ذبح کر کے تو زندہ ہو جائے گا. ویسے اتنے ہوں تھوڑی بالکل چکے ہوں مینوں پتہ لگ گیا بھی تسی بالکل چپ چاؤ اس واسطے گل کہنے تو بغیر میں نہیں لنگ سکتا. بھائی آج ہمیں کہا جاتا ہے نہیں جی وہ جڑے آپ مر گئے ہونا کی کرنا ہے. گائے کی ہے ذبح کی تھی گائے کی تھی ذبح کی تھی. اور گائے کو ذبح کرنے کے بعد ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا نکال کے مردے کو لگایا. مردے کا ٹکڑا مردے کو لکھایا تو ہوا کیا؟ بولیے ذرا یار. بھائی مردے کا ٹکڑا مردے کو لگایا مردہ زندہ ہو گیا. کہتا کیا ہے کہ جناب مجھے کسی اور نے قتل نہیں کیا مجھے قتل کرنے والا میرا اپنا ہی بھتیجا ہے. وہ کسی نے کہا تھا تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. اب بھائی سوال یہ ہے مردے کا ٹکڑا مردے کو لگایا جائے تو زندگی بخشتے اور وہ مردہ گائے کس کی ہے؟ اللہ والوں کی ہے. میں نے کہا ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. اگر اللہ والوں کی گائے ہو اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا لگا دیا جائے تو رب مردوں کو زندگی دے دے. اگر اللہ والا نگاہ ڈال دے تو کیا مردہ دل کو زندہ نہیں فرما سکتا؟ تو یہ اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو شان عطا کرے کوئی بعید نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ولی کی اپنی طاقت نہیں ہوتی. ولی کے پاس جو بھی ہوتا ہے اللہ کی عطا ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ کہے نبی کے پاس سب کچھ اپنا ہے ولی کے پاس سب کچھ اپنا ہے تو وہ غلط کہتا ہے. اگر وہ کہے اللہ کے پاس سب کچھ ہے اس کا اپنا اور نبی کے پاس سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا اور ولی کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا جب ہے ہی سب کچھ اللہ کا تو اللہ کہے کہ میاں تو کر کے دکھا دے. اور قوم جناب موسیٰ پاک کے در دولت پہ گئی تھی نا کہ حضور پانی مجھے ہمیں لے کے دے تو موسیٰ پاک نے کیا کہا تھا؟ مولا پانی مانگ دیا وہ لوگ کی اور میں انج کر بھی تو اپنا آسا مار کی مار کی بولو یار سوٹا اپنا سوٹا پتھر تے مار. حالانکہ بارش کی تو آگی اللہ دے مرتے قادر نہیں. کون جو نبی کو منگیا نبی دربار خدا چرس کی تیر آپ کی فرمایا تو ڈنڈا مار. اللہ کو جو نبی مانگ رہے رب عطا کر دینا. فرمایا نہیں اور چونکہ قوم نبی دے بوئے تے آئیے تو میں آپ پہ نہیں دے رہا میں نبی دے بوئے تے دبانا ہے. فرمایا آئے تیرے کولے تے تو ڈنڈا مار. تے جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور وہ عصا زندہ تھا یا مردہ تھا؟ کیا بولیے ذرا کیا تھا بھائی؟ وہ عصا مردہ تھا. اگر مردہ عصا زندہ نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو پتھر کے اس شکم سے رب 12 چشمے جاری کر سکتا ہے. اگر مردہ دل والے کا ہاتھ زندہ نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو مجھے بتاؤ کیا وہ نبی بگڑیے ہوئے نہیں سوار دے گا؟ وہ مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے زندہ ہو کر کہا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا بھتیجا ہے. اب کیا ہوا؟ وہ جس مال کے لالچ کے اندر اس نے اپنے چچا کو قتل کیا تھا وہ سارے کا سارا مال دے کر وہ گائے کا جو قرض تھا نا وہ اتارا. سوال یہ ہے امام فخر الدین رازی یہ واقعہ میں نے سارا سنایا صرف سمجھانے کے لیے. اگر تسی میرا شروع بول پہ نا تو ایڈا دور ہے پر جانا نہیں سی پڑا ہوتا کا بڑا اگے لگ جانا سی. بات یہ ہے کہ یہ سارا واقعہ سنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میاں یہ جو گائے اتنی مہنگی بکی ہے اس میں خاصیت کیا تھی؟ امام فخر الدین رازی نے کہا کہ یہ جو نوجوان تھا نا جو یتیم تھا اس کے باپ کی تھی دکان اور دکان تھی کریانے کی اور کریانے کی دکان پہ اس دکاندار کا ابا سویا کرتا تھا. ذرا باپ کی شان سن لو. باپ کی شان کیا ہے؟ ہمارے ہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے ایسے دکانداری ہوتی ہیں اور بوڑھے ابا جی جو ہوتے ہیں وہ ہاتھے سو جاتے ہیں یا دکان کے سامنے سو جاتے ہیں. اب بابا جی دکان کے سامنے سوئے تھے. رات کو کسی کسٹمر کو کسی چیز کا سودے کی حاجت پیش آ گئی. اس نے دکاندار کو آ کے اٹھایا. اس نے کہا مجھے سودا دے دکان سے. اس نے کہا چل میں دیتا ہوں. جب دکان کے سامنے آیا نا تو دکاندار نے کسٹمر سے کہا گاہک سے کہا میاں تو جا میں نے سودا نہیں دینا. اس نے کہا ابھی تو کہتا تھا میں دوں گا. اٹھنا ہی اوکھا ہوتا نا جو اٹھ کے تو دکان سے آ گیا تو ہن بابے نے جگہ تے سودا دے دے. انہوں نے کہا نہیں اب میں سودا آپ کو نہیں دے سکتا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا دیکھ رہا ہے ابا جی سو رہے. کہا ہاں. کہا دکان کھول سودا دینے کے لیے دکان کھولنا پڑے گی اور دکان کھولنے کے لیے ابا جی کو جگانا پڑے گا. کہا ہم نے زندگی میں وہ سودا ہی نہیں کیا
کہ جس کے اندر ہمارے ابا کی نیند کے اندر خلل پیدا ہوتا، کہ ہم نے زندگی میں کبھی وہ سودا ہی نہیں کیا جس سودے کی وجہ سے باپ کی نیند میں خلل آتا ہو۔ امام فخر الدین رازی فرماتے وہ جو کسٹمر تھا نا، اس نے کہا ایسا کر مجھ سے ڈبل فائدہ لے لے، ڈبل نفع لے لے اور دکان کھول کے سودا دے دے۔ اس نے کہا تو ڈبل کی بات کرتا ہے، اور زیادہ بھی کرے، اس لیے کہ میرے باپ کی جو نیند ہے نا، جو میرے باپ کا آرام ہے، اس کا تو مول ہی کوئی نہیں ہے، اس کا تو مول ہی کوئی نہیں ہے، تو میں کیسے کہوں کہ ابا تو اٹھ میرے سودا دینا ہے۔ وہ بڑبڑاتا چلا گیا اور سویر کو آ گیا وہ بابا جی کے پاس، وہ کسٹمر کیا اپنا منڈا انہوں سمجھا کہ تیری دکان اجاڑ دینی جی نے، کیا کیا پتر، کیا راتی میں سودا لینا ایسے تو تینوں انہوں نے اٹھایا نہیں، میں موڑ دیتا۔ انہوں نے کہا چل کوئی نہیں کاکا غصہ رکھا، میں شامی گھر جا کے پوچھاں گا۔ شام کو جب بیٹے سے بولا کہا تیرے کاکا رات کو کیا ہوا تھا، کہا بابا فلانا بندہ سودا لینا ہے ایسی تے جگایا نہیں مینوں۔ کیا با آپ کی نیند کا خیال تھا، کہا کاکا مینوں جگا لینا پھر کی سی تو مینوں نیند پھر آ جانی سی۔ یار باپ بڑے سخی ہوتے ہیں، باپ بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے آرام اپنی سکون ہر چیز کو ٹھوکر مار کے کہتے ہیں کہ پھر کے پتر مینوں نیند پھر آ جانی سی۔ آج دے کاکے نو منڈے نو ابا ٹھالو کاکا دیکھی باہر کون ہے، کہا ابا تو آپ نہیں سی جا سکتا، میری نیند خراب کی تھی، آپ جا کے سودا لے آندا دکان تو تمہیں لے بیٹھا سی، میری نیند خراب کر دیتی۔ اب اس نوجوان نے کہا بابا وہ کسٹمر تھا، آپ کو جگانا پڑ رہا تھا اس لیے نہیں دیا سودا۔ کہا بیٹا مجھے نیند پھر آ جاتی۔ تو بیٹے کا جملہ سنیے گا، کہا بابا مجھے بھی پتا تھا آپ کو نیند پھر آ جانی تھی، لیکن میں نے سوچا ابا کی نیند پوری ہو جائے گاہک پھر آ جائے گا۔ آپ نے کہا نیند پھر آ جائے گی اور میں نے سوچا گاہک پھر آ جائے گا، کسٹمر پھر آ جائے گا، سودا پھر بک جائے گا۔ اور جب باپ نے سوچا نا کہ میرا بیٹا اتنا وفادار ہے، اتنا خدمت گزار ہے، میری نیند کا اتنا خیال اور اتنا احترام کرنے والا ہے، تو باپ نے ہاتھ اٹھائے اور سادہ سی دعا کی، مولا جی میں انہیں اپنی اصل کا خیال رکھا نا، مولا تو انجھے دی نسل کا خیال رکھی۔ سادہ لفظ کو ریاض کی تھی، مولا جی میں انہیں اپنے پیو کا خیال رکھا نا، مولا تو کریم کرم کر کے انجھے دی اولاد کا خیال رکھی۔ ابے نے کوئی لمبی چوڑی دعا منگی ہے؟ ایک گل میں جان کے کہنا چاہنا، آج کل کا نوجوان غصہ نہ کرنا، ہم لمبے لمبے سفر کر کے جاتے ہیں مشائخ کے پاس دعا کروانے کے لیے، لمبے چوڑے سفر کر کے جاتے ہیں ہم اپنے اساتذہ سے دعا کروانے کے لیے، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ بیٹھے اور ان کے ہاتھ ترس رہے ہیں تجھے دعا دینے کو، اور ان کی زبانیں ترس رہی ہیں تمہیں دعا دینے کو، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ان سے دعا لینے کے لیے۔ اور بابا جی نے ایک سادہ سا جملہ کہا تھا، مولا اس نے اپنی اصل کا خیال رکھا ہے، مولا تو اس کی نسل کا خیال رکھ۔ اب یہ بات کہنے کی ضرورت تھی، یہ بات کہنے کی حاجت تھی کہ میرے رب نے اس نوجوان دکاندار کی تقدیریں بدل دی۔ اب اس دکاندار والے وہ جو نوجوان تھا نا، جب اس کی موت کا وقت آیا تو بیٹا اس کا آگے چھوٹا تھا، یتیم ہونے والا۔ اب اس نے گائے جنگل میں چھوڑ کے کہا، مولا تجھے پتا ہے میں نے ایک رات اپنے ابا کی نیند کا خیال کیا تھا، بس ساری زندگی کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بار ابا کی نیند کا خیال کیا تھا۔ باپ کی عظمت کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، باپ کا مقام کیا ہے، کہا ایک بار میں نے اپنے ابا کی نیند کا خیال رکھا تھا، اور مولا اس نے مجھے دعا دی تھی کہ اس نے اپنی اصل کا خیال رکھا ہے، مولا تو اس کی نسل کا خیال رکھنا۔ اے اللہ میں مر رہا ہوں، میری موت کا وقت ہے، لیکن مولا اگر وہ میرا عمل پسند آیا تھا نا تو اس گائے کو بڑھانا بھی ہے اور اپنے کرم سے اس گائے کو بچانا بھی ہے، اور جب یہ جوان ہو جائے نا تو فائدے والی بنا کے میرے بیٹے تک پہنچانا بھی ہے۔ اب دیکھیے جنگل کے اندر امام فخر الدین رازی نے کہا وہ گائے ایسی تھی جس کو درندے چارتے تھے، جس کو شیر اور چیتے چارتے تھے اس گائے کو۔ کیوں؟ باپ نے دعا کی تھی نا، اے اللہ اس کی نسل کا خیال کر، اور اس بیٹے نے اپنے باپ کی دعا کو سامنے رکھتے ہوئے رب سے کہا تھا، مولا یہ میرے باپ کی دعا کا نتیجہ ہے، اگر وہ خدمت تجھے پسند آئی تھی نا تو پھر اس گائے کی حفاظت فرما۔ اور اس گائے کو درندوں نے پالا ہے، اس گائے کو درندوں نے سنبھالا ہے، اور صرف درندوں نے سنبھالا ہی نہیں، درندوں نے پالا ہی نہیں، بلکہ جب اس کے خریدار آئے ہیں تو درندے خریداروں کے پاس گائے چھوڑ کے بھی گئے۔ تو یارو آج کا اگر نوجوان
अपने वालिदैन का खिदमत गुजार हो जाए तो फायदा इतना बड़ा मिल सकता है कि आज हमें दुनिया के अंदर माल हमारा बढ़ भी सकता है और वालिदैन की खिदमत की वजह से माल हमारा बच भी सकता है। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को आदत बनाइए कि हम अपने वालिदैन की खिदमत करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आज नौजवान जो 4 जमातें पढ़ जाता है वो अपने माँ बाप से कता ताल्लुकी कर लेता है। और अक्सर नौजवानों से मेरा खिताब होता है और अक्सर मैं नौजवानों से यही अर्ज किया करता हूं कि काका अपने अपने वालिदैन को कभी ना छोड़ना। अगर अपनी दुआओं में असर पैदा करना चाहते हो, जिंदगी में बरकत पैदा करना चाहते हो, रिस्क में खैर चाहते हो, आफात और मसाइब जमाना से बचना चाहते हो, तो क्या करो, आज अपने माँ बाप की आंखों में अपनी वजह से आंसू ना आने दो। अपनी जिंदगी के अंदर अपना किरदार इतना हसीन करो, अपनी जिंदगी के अंदर अपना अमल इतना सच्चा और सुच्चा करो कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप के होंठों पे मुस्कुराहट आ जाए। और मैं बहुत सारे ऐसे नौजवानों को जानता हूं कि जिनके माँ बाप एक सादा सी मजदूरी करने वाले लोग थे, लेकिन औलाद बावफा थी, औलाद माँ बाप की खिदमत गुजार थी। तो माँ बाप ने जब दुआ दी है ना, तो आज वो औलादें बड़े सुख की जिंदगी गुजारती हैं। और बड़े बड़े माल वाले लोगों को मैंने बाजारों के अंदर लोगों की मजदूरियां करते हुए देखा। और वो मजदूरियां किस वजह से करते हैं कि माँ बाप का दिल दुखा, माँ बाप की जुबान से बद्दुआ निकल गई, तो आज उस बद्दुआ का नतीजा वो बाजारों के अंदर लोगों के हाथ धक्के खाते फिरते हैं। यारो अपनी जिंदगी का थोड़ा सा अंदाज बदलिए, और अंदाज बदलिए। और ये अंदाज कितना जरूरी है। आज हम 4 नमाजें पढ़ जाए ना, तो हम कहते हैं नहीं अब्बे की खिदमत की हमें आदत नहीं है, हम तो नमाजों की वजह से बख्शे जाएंगे। आज 4 दिन तिलावत की अल्लाह तौफीक अता कर दे तो हम माँ बाप की खिदमत से बरी हो जाते हैं कि माँ बाप हमारा धक्के खाता है, मजदूरियां करता है, और हम जो है ना वो सफेद पोशी का इजहार करते हैं। किस वजह से कि मैं नमाजी हूं, किस वजह से कि मैं कुरान का कारी और कुरान का आलिम और कुरान की तिलावत करने वाला हूं। और सुनिए इस बात को, अगर इबादत के बलबूते पे, अगर इबादत की हमाकत के अंदर तू माँ बाप को छोड़ रहा है, तो समझ ये तेरी इबादत तेरी हलाकत का जरिया बनेगी। ये इबादत तेरी हलाकत का जरिया बनेगी अगर तूने अपने माँ बाप को छोड़ा तो। इसलिए कि अल्लाह का हुक्म क्या है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन इहसाना, कि रब का फैसला ये है इबादत अल्लाह की होगी, लेकिन वो इबादत फायदा तब देगी जब उसके इबादत के साथ साथ वालिदैन के साथ तुम्हारा हुस्न सलूक भी होगा। वरना वो रब हमारे सजदों का मोहताज नहीं है, वरना उस रब को हमारी तिलावतों की जरूरत नहीं है अगर हमसे हमारे वालिदैन राजी नहीं है, अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की। सरकार अलैहिस्सलाम की एक सहाबी है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे थे। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम के दर दौलत पे बैठे थे, तो सरकार अलैहिस्सलाम से सवाल किया, हुजूर मुझे कोई नसीहत इरशाद फरमाइए। तो मेरे आका की नसीहत सुनना कितनी हसीन थी। हुजूर ने फरमाया इहफज़ वुद्द अबीका, अब्दुल्लाह बिन उमर अपने अब्बा के दोस्तों का ख्याल रख। और आज के नौजवानों के अंदर आप फीसद निकालिए, कितने नौजवान हैं जो अपने माँ बाप को छोड़े बैठे और सिर्फ बीवी बच्चों की वजह से, और कहते क्या है जनाब बीवी बच्चों के भी तो हुकूक है। मैंने कहा भैया बीवी बच्चों के हुकूक किसने बताए हैं तुम्हें? अगर कुरान बताता है बीवी बच्चों के हुकूक, तो कुरान बीवी बच्चों के हुकूक बाद में बताता है और वालिदैन की खिदमत का हुक्म पहले अदा करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तुम्हें बीवी बच्चों के हुकूक बताए, तो उसी नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़बान अंबरी ने हमें वालिदैन के हुकूक भी तो समझाए ना। लेकिन आज हमें बीवी बच्चों के हुकूक का पता है, जिनके हम बच्चे थे क्या उनके हुकूक का हमें नहीं पता? और सुनिए सरकार अलैहिस्सलाम के हदीस आपने क्या फरमाया, फरमाया इहफज़ वुद्द अबीका, फरमाया अपने अब्बा के दोस्तों का ख्याल कर। कभी भी अपने अब्बा के दोस्तों के साथ कता ताल्लुकी न करना, अब्बा के दोस्तों को कभी न छोड़ना। अब्दुल्लाह बिन उमर ने बात को बढ़ाने के लिए, हमारा मसला हल करने के लिए अर्ज की, हुजूर अगर मैं अब्बा के दोस्तों को छोड़ दूं फिर क्या नुकसान होगा? अब्बा के दोस्तों को, अब्बा को छोड़ने की बात नहीं है भाई, अब्बा को छोड़ने की बात नहीं है, अब्बा के दोस्त को छोड़ने की बात है। हुजूर अगर अब्बा के दोस्त को छोड़ दूं नुकसान क्या होगा? आपने फरमाया युत्फी अल्लाहु नूरका, जिस दिन तूने अपने अब्बा के दोस्त को छोड़ दिया ना, समझ जाना उसी दिन रब तेरे चेहरे को बेनूर कर देगा, रब तेरे चेहरे को
बेनूर कर देगा। भाई समझिए जरा कि जो नौजवान सहाबी रसूल हो और मुराद मुस्तफा उमर बिन खत्ताब का बेटा हो, जिसके लिए नबी हाथ उठा उठा के दुआएं करते हो, अगर वो अब्बा के दोस्त को छोड़ने की बात करे तो नबी फरमाए रब तेरा चेहरा बेनूर कर देगा। तो आज वो बेटा जो कई सालों से जिसने बाप को अपना मुंह नहीं दिखाया और जिसके माँ बाप अपनी औलाद को देखने के लिए तरसते तरसते दुनिया से चले गए, क्या वो बेटा जिंदगी के अंदर नूर कहीं से पालेगा? यारो आज अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को नस्बुल ऐन बनाए कि कम से कम हमारी वजह से हमारे माँ बाप की आंखों के अंदर आंसू नहीं आने चाहिए। आप वो अमल कीजिए कि जिनकी वजह से बेसाख्ता हमारे माँ बाप की जुबानों पर हमारे लिए दुआ जारी हो जाए। और एक दिन हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये मदीना मुनव्वरा से बाहर चले गए थे, या मदीना मुनव्वरा तशरीफ लेके आए, तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर को पता चला कि आज अबू दरदा आए। तो हजरत अबू दरदा को मिलने के लिए आए तो साथ में तहाइफ भी लेके आए, और तहाइफ पेश करने के बाद ना अबू दरदा को अब्दुल्लाह बिन उमर सामने बैठ गए तो अबू दरदा का चेहरा देखने लगे। अबू दरदा का चेहरा देखने लगे तो हुजूर ने पूछा, अबू दरदा ने पूछा अब्दुल्लाह बिन उमर खैर है, आज बड़ा टिकटिकी बांध के देखता है। तो अब्दुल्लाह बिन उमर का जवाब सुनिएगा कि आज मैं अपने चेहरे का नूर बढ़ा रहा हूं, आज मैं अपने चेहरे का नूर बढ़ा रहा हूं। का क्या मतलब? का मेरे हुजूर ने फरमाया था अब्बा के दोस्तों को न छोड़ना, अब चेहरा बेनूर कर देगा। का आज मदीने में मेरे अब्बे का दोस्त आया है, तोहफे भी पेश करता हूं और सामने बैठ के अपने अब्बे के दोस्त की जियारत भी कर रहा हूं। लेकिन आज क्या करें, आज हमारा बाप दुनिया से चले जाए तो चाचे हमारे मर जाते। भाई चचा के बाप के फौत हो जाने पे अगर तेरा चचा रोता है ना, भाई अगर पुप्पी रोती है तो वो अपने भाई के जाने का दुख तो लिए बैठी है बेचारी, वो ये भी सोचती है कि अब हमें इस घर के अंदर कौन बुलाएगा। इसलिए पुप्पियों के साथ तो हमारा रिश्ता ही बड़ा कमजोर सा है। और चाचे, उसको तो हम चाचा कहते भी नहीं है। दोस्त पूछे कि कौन है, ये मेरे अब्बे का भाई है, जिसने तुझे कंधों पे सवारियां करवाई थी, और तेरे पैदा होते जिसने मिठाइयां बांटी थी, और जिसके मुंह के अंदर तेरी रालें गिरती थी, और तेरा जूठा खा खा के उन लोगों ने तुझे जवान किया है, अपने मुंह के नवाले खिला खिला के तुझे परवान चढ़ाया है, और आज उनको तू चाचा और ताया कहते हुए भी शर्माता है। अब सुनिए जरा इस अमल को, और इस अमल को पल्ले बांधिए नौजवानों। अगर माँ बाप की खिदमत नहीं है तो जिंदगी के अंदर कामयाबी नहीं है। जिंदगी में कामयाबी है तो किस बात के अंदर है? वो माँ बाप के साथ है और माँ बाप के दोस्त अहबाब के अदब एहतराम के अंदर है। देखिए फिर जिन्होंने सुफा के चबूतरे में बैठ के नबी पाक अलैहिस्सलाम से वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम और वालिदैन के दोस्त अहबाब, ताल्लुकदार और रिश्तेदारों का मकाम सीखा था, फिर उन्होंने अब्बा के दोस्तों का ख्याल कैसे रखा। लेट तो नहीं हो गया? हाँ, जिन्ना मैं लेट होया उन्ना मैं तो करके जाऊंगा। जब बयान शुरू हुआ था दूसरी वक्त ही, बल्कि भाई कह रहे थे कि डेली लेट आए। भाई मैं अर्ज करता हूँ कि हर बंदे का भाई टाइम बड़ा जरूरी है और टाइम बड़ा कीमती है। अपने टाइम का ख्याल रखा, वक्त जो वक्त दिया जाए ना उस वक्त पे आओ, अपने वक्त पे आओ। तो जो वक्त घर वालों ने दिया है ना उस वक्त पे दुआ करवाओ। घर वालों को कहो मियां बस दुआ करवा, जरा आ गया जरा नहीं आया वो अल्लाह दे। इस बात का ख्याल करो, इसलिए कि कौम का वक्त बहुत कीमती वक्त है। अगर 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 वक्त की कदर ना होती ना, अगर वक्त की कदर ना होती तो रब 5 वक्त की नमाज वक्त पे फर्ज ना करता। 5 वक्त की नमाज फर्ज है तो वक्त पे, हज वक्त पे, रोजा, ज़कात, भाई हर चीज का वक्त है। सूरज अपने वक्त पे चढ़ता है, अपने वक्त पे सोने का टाइम है, अपने वक्त पे जागने का टाइम है, हर चीज का वक्त है। लेकिन क्या करें, हमारी महफिल ये जो इसाले सवाब है इसका कोई वक्त नहीं है। ये कौम के आने पे मुनहसर है, कौम जब आएगी तो फिर हम देख लेंगे। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने टाइम का ख्याल रखें। और ये अक्सर जो प्रोग्राम लेट होते हैं वो मेजबान की वजह से नहीं होते, अक्सर मेहमानों की वजह से लेट होते हैं। अपने वक्त पे आइए और मेजबान से अर्ज कीजिए कि जो लेट आए हैं उनके लेट आने की सजा हमें ना दे, हम जो पहले आए हैं ना हमारे लिए जो है ना वो दुआ का टाइम पहले रख लें। अब सुनिए इस बात को, मैं अपनी बात को बिल्कुल क्लोज करने वाला हूँ। अगर मुझे हुक्म ना दिया गया होता तो मैं कब की बात मुका चुका होता। हालांकि जब मेरे भाई मेरे पास गए थे तो कहा था हमने 10 बजे खत्म पढ़ना है, इधर आके पूछा अभी मैंने, और मैं